السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور عبدالجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا جی، گزشتہ روز جو کراچی میں بارش ہوئی، ہم نے ایک سیم پیٹرن نوٹس کیا جو ہم نے دیکھا تھا جب لاہور میں سیلاب آیا شادرہ کے مقام پر، دریائے راوی میں طغیانی آئی تو وہاں پر لوگ فیملیز کے ہمراہ دریائے راوی کے پل پر پہنچ گئے راوی میں پانی دیکھنے کے لیے. پکنک پوائنٹ وہاں پر کھل گیا. سیم پیٹرن ہم نے دیکھا کراچی میں. کل ملیر ندی اور لیاری ندی فل تھے، لوگ لٹرلی وہاں پر اپنی فیملیز کے ہمراہ پانی دیکھنے آئے ہوئے تھے لیاری ندی کے اندر. اتنا ہم میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ واقعات رکھتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے جب سوات میں دریا میں کس طریقے سے پوری فیملیز بہہ گئی تھی، کس طریقے سے لوگ بارشوں میں باہر نکلے تو پوری گاڑیاں بہہ گئی تھیں. ایسے میں آپ اپنی جان کو کیوں اتنی مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ اور سائم صرف خود نہیں آتے، دوست بھی آتے ہیں، فیملیز بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، باوجود اس کے منع کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب سمندر پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے تب بھی یہ لوگ ساحل پر پہنچ جاتے ہیں. لوگوں نے اسے پکنک پوائنٹ بنا لیا. لٹرلی ملیر ندی پہ کیا مناظر تھے کل آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. تیز لہریں، شور مچاتا پانی، یہ کوئی سمندر یا دریا نہیں بلکہ کراچی کی ملیر ندی ہے. بارش نے جہاں شہر میں تباہی مچائی، وہیں دوسری جانب ملیر ندی میں پانی کی سطح بڑھنے سے ندی دریا کے منظر پیش کرنے لگی. بچے، بڑے، مرد، خواتین حسین نظارے سے لطف اندوز ہونے ندی کنارے پہنچے اور خوب انجوائے کیا. ملیر ندی کے بہت ہی خوبصورت منظر کبھی کبھار ہوتے ہیں بارش کے، اور لوگ کافی تعداد میں نکلے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ اور گھومنے پھرنے، موسم کو انجوائے کرنا ہے. یہاں پر کوئی 4 نمبر سے بھی آتے ہیں لوگ، سوداباد، یہ ملیر کی طرف سے کافی سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر، اپنے بچوں کو، فیملیز کو لے کے آتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں یہاں پر. شہری کہتے ہیں مشکلات اور پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن ایسی موسم میں سستی تفریح مل جائے تو اور کیا چاہیے. کیمرامین قدیر بلوچ کے ساتھ علی محمد شہر، ARY نیوز، کراچی. میں تو حیران ہوں کہ سیر و تفریح کا مقام ہے یہ آپ کے لیے. مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں انتہائی خوبصورت منظر ہے، انتہائی، میں نے ایڈ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں خوبصورت، یہ مٹی والا پانی، گدلا پانی، جو پانی آپ کی جان لے سکتا ہے. اور چھوٹا چھوٹے بچے جو ہیں بالکل پاس کھڑے ہیں، بائک بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے، گھر کی خواتین بھی آئی ہوئی ہیں. بھائی ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ مطلب کوئی بھی ناگہانی آفت آ جائے ہمارے ملک میں، سب سے پہلے ہمارے شہری جا کے، ابھی کرونگی میں جب آگ لگی تھی وہاں، اچھا پتہ ہے بات کیا ہے، جاتے ہیں وہاں پر ویڈیوز بنانے کے لیے. بیسیکلی یہ جو شوق ہے نا ویڈیوز بنانے کا اور سنیپس بنانے کا اور پھر اس کے بعد سلو موشن ویڈیوز وہاں پر بنانے کا، آپ پلیز تھوڑا سا احتیاط کر لیں. الیکٹروکیوشن کے واقعات ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں، ایک بندے پہ تو آپ پولیس اہلکار کو ڈپلوائے نہیں کر سکتے ہیں، کس طریقے سے روکا جائے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسرے آپ نے صحیح کہا کہ یہ سب سوشل میڈیا کے لیے ہو رہا ہے، سب ویڈیوز کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے حوصلے بلند ہیں، آپ کے اسپرٹس اچھے ہیں، صحیح ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بٹ آپ اپنی جان نقصان میں نہیں ڈال سکتے. آپ اپنے آپ کو نقصان میں، آپ دیکھیں آپ چھوٹے سے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، لٹرلی 4-5 سال کا بچہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیر سلپ ہو سکتا ہے. آپ لوگ پلیز احتیاط کریں، پلیز احتیاط کریں. چلیں جی، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں اور ذرا آج کراچی کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ بارش جو ہے وہ رات گئے تو تھم گئی تھی، صبح سویرے پھر سے ذرا کہتے ہیں لائٹ شاور شروع ہوئے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم نذیر کی طرف چلتے ہیں. نذیر بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر ہیں اور کیا تھرو آؤٹ اپڈیٹ ہے، رات سے صبح ابھی تک کیا صورتحال ہے؟ آپ بالکل دیکھیں، میں اس وقت کرونگی کاز وے پر موجود ہوں، جو اس سے قبل بھی کئی مرتبہ جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ راستہ جو شہر سے کرونگی ایریا کو ملاتا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد یہاں سے کرونگی اور پھر واپس اپنے دفاتر سے ہوتی ہوئی یہاں سے شارع فیصل، بلوچ کالونی اور دیگر جگہوں کا سفر کرتی ہے. کراچی میں جہاں تیز بارش کے اسپیل کی وجہ سے جو گوٹھ اور کچی آبادیوں کو نقصان پہنچا، وہیں انفراسٹرکچر بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیمرامین دکھا سکے، یہ پوری روڈ یہاں سے لے کے کیمرامین جہاں تک دکھا سکے یہ پوری روڈ اکھڑ چکی ہے. اور اگر یہ بائیں جانب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا میں آپ کو مزید یہ واک تھرو کر کے دکھاؤں تو یہاں کی سڑک کا جو آپ حال دیکھ سکتے ہیں. اور یہیں سے اگر آپ تھوڑا سا تقریباً 500 میٹر آپ آگے جائیں گے تو وہاں سڑک پر مکمل طور پر پانی آیا ہوا ہے.
جس کی وجہ سے کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل سوار حتیٰ کہ پیدل بھی آپ سفر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے جو پولیس، ٹریفک پولیس اور جو دیگر انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے اس جگہ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جو یہاں پر فٹ پاتھ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں سائڈوں سے بھی مکمل طور پر یہ سڑک ٹوٹ گئی ہے، اور یہ جو بڑے بڑے یہ ٹکڑے ہیں یہاں اس کے نیچے میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ پہلے بھی یہاں سڑک موجود تھی بالکل، لیکن اس کے بعد پھر یہ مزید جو ایک لیئر بنائی گئی ہے تو یہ اوپر والی لیئر کھڑی ہے، نیچے والی کچھ جگہوں پر محفوظ ہے اور کچھ جگہوں پر یہاں سے آپ یہ تیسری دیکھ سکتے ہیں، جو پہلی لیئر یہ رہی، دوسری یہ رہی اور تیسری لیئر یہ رہی، اس کے اندر جو ہے یہ اس طرح یہ کرش موجود ہے۔ تو کہیں پر پانی اصل میں جس بہاؤ کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ آیا تھا تو اس میں اتنا زیادہ پریشر تھا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ مین یہاں سے تھوڑا زوم کر کے دکھائے، سامنے ایک ہائی ٹینشن ہے جو جام صادق پل کی طرف، جو سامنے کیمرہ مین دکھا سکے، اس کے نیچے کی مٹی آدھی سے زیادہ نکل چکی ہے اور وہ اب کھمبا جو اس کے نیچے بیس تھی۔ نذیر ایک بات بتائیے گا، ابھی آپ جس سڑک کے حالات ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ کون سا مٹیریل یوز کیا گیا سڑک کے اندر کہ 3 لیئرز جو ہیں وہ سڑک کی اکھڑ گئی ہیں؟ دیکھیں یہ سڑک ہم نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ اس سڑک کو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کراچی کی کچھ لنک سڑکیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی اہم دی جاتی ہیں، قرار دی جاتی ہیں۔ یہ انڈسٹریل ایریا کو ملانے والی سڑک ہے۔ اگر آپ شارع فیصل بلوچ کالونی سے ہوتے ہوئے آپ یہاں سے آتے ہیں تو آپ کورنگی انڈسٹریل ایریا جا سکتے ہیں، جہاں پر لاکھوں کی تعداد سے لوگ ورکرز کام کر، مالکان جاتے ہیں، پر دیگر جہاں پر بہت بڑے پیمانے پر فیکٹریاں، انڈسٹریز ہیں۔ اسی طرح جب یہاں سے آپ واپس جاتے ہیں تو اگر آپ لیفٹ جائیں گے تو قیوم آباد ہے، سیدھا جائیں گے تو شہید ملت، بہادر آباد، اور اگر آپ الٹے ہاتھ پر جائیں گے تو ڈیفنس کلفٹن، اور دائیں جانب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو ایئرپورٹ کا راستہ آتا ہے۔ تو بالکل یہ ایک بہت اہم جگہ ہے، اور یہاں کا جو سٹرکچر ہے، یہاں سے کیمرہ مین اگر زوم کر کے دکھایا تو آپ کو صرف پانی نظر آئے گا۔ اس سڑک پر آگے پورا پانی آیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم آپ کو اس وقت انفراسٹرکچر جو سڑک کی صورتحال ہے وہ دکھا رہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بارش نے کس برے طریقے سے اس جگہ کو نقصان پہنچایا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ 15-20 دن سے پہلے بھی یہ مرمت ہو سکے گا۔ آیا ہے نذیر، کیونکہ اتنی بارش نہیں ہوئی ہے جتنا نقصان ہمیں سڑک کا نظر آ رہا ہے، اور کورنگی کاز وے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ انڈسٹریل ایریا میں۔ تو سادی ٹاؤن میں موجود ہے ہمارے نمائندے افضل پرویز، ان کی طرف چلتے ہیں۔ اور گزشتہ روز یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بارش کے بعد جو پانی کھڑا تھا اور جو صورتحال تھی، تو افضل بتائیے گا اس وقت کچھ بہتر حالات دکھ رہے ہیں کل کی بنسبت؟ جی بالکل سائم اور صدف، دیکھا جائے تو حالات بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بارش کے دوران شہر تو متاثر نہیں ہوا، آبادیاں متاثر نہیں ہوئی، لیکن دیکھا جائے تو تھڈو ڈیم اوور فلو ہوا تھا، اس سے جو کافی علاقے متاثر ہوئے، جس میں بتایا جاتا ہے جس مقام پہ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں یہ سادی ٹاؤن کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو سپر ہائی وے کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہ بھی زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ سب سے ماضی میں ڈوب جایا کرتا تھا سادی ٹاؤن، کیونکہ سرابی ریلا داخل ہوتا تھا، جو تھڈو ڈیم اوور فلو ہوتا تھا، اس کے بعد پورا سادی ٹاؤن ڈوب جایا کرتا تھا، کئی دن تک پانی جو ہے کھڑا رہتا تھا۔ لیکن اس حوالے سے کافی اقدامات کیے گئے کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کینٹ کی جانب سے، اب پانی جو ہے بہت کم نظر آتا ہے۔ میرا کیمرامین یہ تمام تر مناظر دکھا سکتا ہے کہ اس وقت پانی کی نکاسی کے حوالے سے ملیر کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ مصروف نظر آتا ہے۔ جب سرابی ریلا رات جب داخل ہوا تھا تو یہاں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور فوری اقدامات کے حوالے سے جو ہے ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے حکمت عملی اپنائی گئی۔ M9 کے مقام پر جو ہے وہ ایک بند باندھا گیا اور پانی کا جو سیلابی ریلے کا رخ تھا وہ دوسری جانب موڑا گیا۔ اس طرح جو صورتحال تھی وہ قدرے بہتر ہوئی، اور سیلابی ریلا مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ملی ندی کی جانب داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اس وقت جو سیلابی صورتحال جو پیدا ہوتی تھی وہ اب قدرے بہتر ہے، کیونکہ M9 کے مختلف مقامات پر جو پانی جمع ہے اس کی نکاسی کے حوالے سے مختلف ادارے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، افضل پرویز ہم یہاں سے سادی ٹاؤن سے، اور نذیر ہمارے ساتھ موجود تھے کاز وے سے۔ تو یہ تمام تر سچویشن تھی جہاں پر سیلابی صورتحال ہے، انپریسیڈنٹڈ رین فالز ہو رہی ہیں، مونسون کا 10واں اسپیل جاری ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مواصلاتی نظام شدید متاثر ہے، درہم برہم بھی اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا۔
انٹرنیٹ سروسز متاثر ہیں, ساتھ ہی ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن جو آپ کی سروسز ہیں وہ بھی بے حد متاثر ہو رہی ہیں. تو ملک میں پی ٹی سی ایل کالز اور انٹرنیٹ سروس تعطل کا شکار ہو رہی ہیں اور شکایات کافی حد تک سامنے آ رہی ہیں. صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے. کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروسز سست ہونے سے آن لائن کام کرنے والے صارفین جو فری لانسرز ہیں, جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کاروبار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ادھر وفاقی حکومت آئی ٹی کے شعبے میں مؤثر اقدامات کر رہی ہے. آئندہ چند سال کے دوران پاکستان میں 70 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہے. حکومت جو ہے آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس فنڈ ہے اس کے قیام کا بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ شزا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے جو اس وقت ظاہر ہے بارشیں ہیں, انپریسیڈنٹڈ یہ بارشیں ہیں اور ملک میں جو حالات ہیں, انٹرنیٹ سروس تعطل کا شکار ہو رہی ہے, شکایات صارفین کی طرف سے آ رہی ہیں. کچھ وجوہات ہیں اس کی جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور کب تک حل ہوگا مسئلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آج اس آپ نے مارننگ شو پہ موقع دینے کے لیے. دیکھیں جو کراچی کے اندر اس وقت صورتحال ہے, اور میں سارے پاکستان میں جو پیچھے سیلابی صورتحال رہی اس کے اندر ہمیں بالکل ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں ایک ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹاورز بھی ڈاؤن ہوئے, ہمیں ایک امپیکٹ آیا ہمارے ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں. مگر میں اپنی جو ٹیمز جو گراؤنڈ پہ ٹیمز کام کرتی ہیں, جو ہماری ٹیلی کام انڈسٹری کے لوگوں کی ٹیمز کام کرتی ہیں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی, یو ایس ایف کی, ہماری این ٹی سی کی, انہوں نے بہت مؤثر انداز میں جو ہے وہ ان ٹیلی کام ٹاورز کو واپس ریکور کیا. اور اس وقت ہماری 90% سے زیادہ جو ٹاورز ہیں وہ ریکور ہو کے ریسٹور ہو چکے ہیں. لیکن ایک جو بڑی ڈسرپشن آئی ہوئی ہے وہ سب مرین کیبلز جو جدہ کے پاس ریڈ سی میں یمنی واٹرز میں جو وہاں پہ تقریباً 5 کیبلز ہیں سب مرین جن کو سائملٹینیسلی جو ڈیمیج ہوئی ہیں. 4 ہوئی ہیں 6 اور 7 ستمبر کو, اور ایک پہلے سے ہوئی بھی تھی. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تقریباً 1.3 ٹیرا بائٹس کا جو ہے وہ امپیکٹ آیا. مگر کیونکہ ہمارے پاس ریڈنڈنسی تھی تو نیٹ امپیکٹ تقریباً 400 گیگز کا ہوا. اس کے لیے بھی ہم شارٹ ٹرم پروکیورمنٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو صارفین ہیں ان کو اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کے جو سلونیس ہے یا جو لیٹنسی بڑھ رہی ہے اس کا اثر نہ آئے. لیکن اوور آل سچویشن جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ فلڈ کی صورتحال سے جو ہیں وہ تو ہم نے ریپڈلی ریکور کر لی ہیں, اور جو انٹرنیشنل جو کٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہیں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہماری سپورٹ میں ہیں. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارا اوور آل جو سسٹم ہے, میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ اوور آل سسٹم جو ہے وہ ہم 2 لین کی سڑک پہ 8 لین کی گاڑیاں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی حال انٹرنیٹ کا ہے کہ سسٹم آکشن کی وجہ سے جو ہے اس کی جو اسپیکٹرم آکشن ہونی ہے 4G کی 5G کی, اس کی وجہ سے سسٹم میں باٹل نیک ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی لٹیگیشن جلد کلیئر کرا کے کورٹس کی مدد سے اس کو جلد آکشن کر سکیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب 600 میگا ہرٹز مزید آکشن ہوگا تو آپ کی جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ تقریباً 2 گنا سے زیادہ امیڈیٹلی آپ کو ہوتی ہے. اچھا شزا, ایک اور چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ جب بجلی جاتی ہے تو ٹیلی کمیونیکیشن جو ٹاورز ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں, اور پہلے جنریٹرز کا استعمال ہوتا تھا وہاں پر, اب صارفین یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جنریٹرز کا استعمال نہیں کیا جاتا تو جس کی وجہ سے سگنلز بھی آنا بند ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال کے پیش نظر ان اداروں کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ اگر بجلی جا رہی ہے تو ایٹ لیسٹ موبائل کے سگنلز تو نہ جائیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے 2 چیزیں کی تھی خاص طور پہ سیلاب کی صورتحال میں. پہلے تو یہ کیا تھا کہ ہم نے 911 کی ایک جو انٹرنیشنل ITU کے مطابق ایمرجنسی نمبر ہے وہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر بالفرض کسی ایک کمپنی آپ کے پاس ٹیلینور کی, جائز کی, یو فون کی سم ہے, زونگ کی سم ہے, اگر آپ کے نیٹ ورک کا ٹاور خدا نخواستہ بند ہوتا ہے مگر کوئی اور نیٹ ورک کا ٹاور چل رہا ہے, جب آپ 911 ڈائل کرتے ہیں تو سارے ٹاورز رسپونڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا سگنل نہیں بھی آ رہا تو 911 جو ہے وہ ایمرجنسی نمبر سے ہم نے یہاں پہ NTC کے ساتھ اور PTA کے ساتھ مل کے, پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ مل کے کال سینٹرز کیے جن کو NDMA سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو اگر میں آپ کے شو کے ذریعے ان تمام متاثرین کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح سٹرینڈڈ ہے کہیں پہ اور ان کے فون کے سگنل نہیں بھی آ رہے تو اگر وہ 911 ڈائل کریں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کا کنیکشن جو ہے یہ تو ہنگامی صورتحال کی آپ بات کریں نا, جنرلی اگر بات کریں کافی علاقے ایسے جہاں پر بجلی جاتی ہے. آنے لگی جی
प्लीज। मैं वहीं आने लगी हूँ। तो जहाँ पे लोड शेडिंग का मसला है वहाँ पर ये बिल्कुल होता है। तकरीबन 8 से 12 घंटे का तो बैकअप हमने मैंडेटरी पीटीए ने किया होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री को, कि अगर 8 घंटे बिजली नहीं आती तो उसका बैकअप जनरेटर मैंडेटरी है। उसका भी हमने लिमिट्स जो हैं वो अब बढ़ा दी हैं कि उससे ज़्यादा भी जो है उनके पास बैकअप होना चाहिए। मगर एक देखिए, जो एक टावर है वो एक तरह से पावर जनरेटर की तरह काम करता है और उसकी एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है। तो एक हद तक इंडस्ट्री भी जो है वो उसका बैकअप का कॉस्ट अफोर्ड करती है। उसमें डीजल डलता है जनरेटर के अंदर, वो जनरेटर से पूरा टावर चलता है, एक तकरीबन एक ग्रिड की तरह होता है पूरा टावर। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है, पीटीए ने उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी एक्सटेंड कर दी हैं कि ये नहीं है कि अगर 8 घंटे एकदम ऊपर हो गए तो सारा सिस्टम डाउन हो जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ राब्ते में भी रहते हैं, इंडस्ट्री भी हमें सपोर्ट कर रही है कि हम जहाँ तक हो सकता है लेकिन ये देखिए मुश्किल हो जाता है कि अब 24 घंटे लाइट नहीं आ रही। तो या कभी कभी एक दिन से ज़्यादा बढ़ गई है किसी मुश्किल की सूरत हाल में, या रेगुलरली जो है वो 22-22 घंटे 20-20 घंटे किसी जगह पे अगर लाइट नहीं आ रही तो वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत हाई हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर थोड़ी सी लिमिटेशन आती है। लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करने के लिए पीटीए इस चीज़ को इंश्योर करता है कि बैकअप जनरेटर्स हों। मैं आपको इसमें खुशखबरी देना चाहती हूँ कि पिछले 1.5 सालों में हमने तकरीबन 5,000 से ज़ायद टावर्स को सोलर पे इसलिए किया, और हमारी कोशिश ये है कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हुए मोबाइल टावर्स को सोलराइज करें। अभी चीन में वज़ीर आज़म साहब की एक कंपनी से मुलाकात हुई, वही कंपनी है जिसने पाकिस्तान में किया है। उनके साथ हमारी मजीद बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान में बेशतर टावर्स को सोलराइज कर दिया जाए कि दिन के टाइम कम से कम उनको ये इशू ना आए और रात के टाइम जो है वो उनकी बैटरी काम करे। ठीक है। अच्छा शिजा, ज़ाहिर है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर है अब एआई का ज़माना है, अब नई जॉब्स भी क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, और वफाकी हुकूमत ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़ंड के क़याम का फ़ैसला किया है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करने के लिए कितना अहम है, नई जॉब्स की क्रिएशन के लिए कितना अहम है? देखिए, बहुत बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, आज जो पूरा डिजिटल लैंडस्केप है वो पहले एक एनालॉग था, फिर वो डिजिटल हुआ। अब हम कहते हैं कि हम एक इंटेलिजेंट एज में रह रहे हैं, डिजिटल से हम इंटेलिजेंट एज में मूव कर गए हैं। उस इंटेलिजेंट एज में भी पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, फिर जनरेटिव एआई आया, अब एजेंटिक एआई आ रहा है। तो दुनिया जिस स्पीड पे ग्रो कर रही है, हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन है कि हमारी जो नौजवान हैं, नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ ये नहीं, इवन हमारी इंडस्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको एआई पे, रोबोटिक्स पे, ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा, हमारी एग्रीकल्चर को जाना पड़ेगा और हमारी गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। तो इन सब लोगों को, इन सब सेक्टर्स को देखते हुए हमने एक फ़ंड का जो है वो क़याम किया, जिसके तहत हमारी कोशिश है कि हम तकरीबन एटलीस्ट 10 लाख बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दिलाएं। कुछ हाई एंड होंगी, कुछ बेसिक होंगी। अभी जिस तरह मैं आपको बताऊं तो हमारे डिजी स्किल्स के प्रोग्राम के तहत 3 लाख बच्चे ऑलरेडी हमारे फंड से फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। 3 लाख का नया कोहॉर्ट जो है वो दिसंबर में शुरू होगा। हमने, आप कोई भी कोर्स करें डिजी स्किल्स पे, हमने उसके साथ एक एआई की जो ट्रेनिंग है उसको मैंडेटरी कर दिया है। क्योंकि आज अगर चाहे आप आर्किटेक्ट बने, आप तरखान बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, लॉयर बनना चाहते हैं, आपको एआई आना ज़रूरी है। तो इस ट्रेनिंग से हमें उम्मीद है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होगी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ट्रेनिंग का नंबर इज़ नॉट, वो खाली ट्रेनिंग का नंबर नहीं देखेंगे, वो देखेंगे ये कि उस ट्रेनिंग के नंबर से एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई, कितने बच्चों ने कारोबार शुरू किया, कितने बच्चों को नौकरी मिली, कितने बच्चों को प्रमोशन मिली। तो आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी अपने बच्चों के साथ, जो ये आपका शो इस वक्त देख रहे होंगे, उन तमाम सारिफीन के साथ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आपकी नौकरी जाएगी उन लोगों की वजह से जिनको एआई आता होगा। तो आप अपने फ्री टाइम में अपना वक्त निकालें। आज तो दुनिया जो है आपके घरों के अंदर, आपके मोबाइल्स के अंदर MIT के, हार्वर्ड के कोर्सेज मौजूद हैं। तो अपने फ्री टाइम में ज़रूर अपना वक्त जो है वो, हम सर्टिफिकेशंस भी करा रहे हैं, आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आएँ, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ंड भी कायम किया। वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से ट्रेनिंग का बात करते हैं,
तकरीबन महीने में 2 मीटिंग्स होती हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट की और ट्रेनिंग की। उन्होंने एक दिन, मैं आपको एक और बड़ी छोटी सी बात बताती हूँ, एक दिन उन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्टर को और प्लानिंग मिनिस्टर को बिठा दिया और एक छोटी सी हमने मीटिंग की कि हमारे साथ और नैफटेक के साथ और एफबीआर की डिजिटाइजेशन के लिए कहाँ कहाँ से हम फंड्स जो हैं वो अलग कर सकते हैं। सो ही इज़ लिटरली स्क्रैपिंग द एंड ऑफ द बैरल के आखिरी भी जो पेनी निकल सकता है वो बच्चों की ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लगे। तो इसके ऊपर स्पेसिफिक मीटिंग्स हो रही हैं, फंडिंग जो है वो एलोकेट हो रही है और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग ज़रूर देंगे। लेकिन बच्चे हों, बड़े हों, जी, आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं आप जरूर सीखिए। परफेक्ट। लास्टली एंड वेरी शॉर्टली, हम देखते हैं बहुत से पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज में तामीराती शोबे में एम्प्लॉयड हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं, अच्छा खासा सरमाया पाकिस्तान भेज रहे हैं। सो फॉर दैट नीश जो किसी ना किसी फिजिकल स्किल के अंदर इन्वॉल्व हैं, कुछ ही अर्से में तमाम तरह हालात बदल जाएंगे, उनके लिए कैसे AI मुफीद हो सकता है या उनको कैसे ट्रेन किया जा सकता है AI के शोबे में? बिल्कुल, देखिए जब हम AI में ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम 3 की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं स्किलिंग की, वो लोग जिनको हमने शुरू से स्किल करना है। एक हम बात करते हैं अप स्किलिंग की, वो लोग जो टेक के शोबे में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा स्किल दे के अप स्किल कर दें। और तीसरी हम बात करते हैं रीस्किलिंग की, कि वो लोग जिनका हमें खदशा है कि उनकी नौकरियां कल को शायद AI की वजह से इंडेंजर्ड हैं, उनको हम रीस्किल करके एक और स्किल सिखा दें ताकि वो इमीडिएटली जो नया एक पूरा एम्प्लॉयमेंट का, लेबर फोर्स का लैंडस्केप जनरेट हो रहा है वो इमीडिएटली उसमें मर्ज हो जाएं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, ख़ासतौर पे वो ममालिक जहाँ पे हमारी मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो कि हमारा बेहतरीन एक सरमाया है, उनके लिए हम किस तरह से वाया एम्बेसीज भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि इनकी रीस्किलिंग ऐसे हो कि आने वाले वक्तों के मुताबिक ये किसी ना किसी शोबे में, या तो वो अपने शोबे में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के ज़रिए रेलेवेंट रहें, अगर उनका ऐसा शोबा है जिसमें नहीं रह सकते तो वो कौन से ऐसे शोबे में कर सकते हैं, उसका हम इंशाल्लाह पूरा ख्याल रखेंगे। QR कोड्स हम एक्सपैट्रिएट्स के लिए जो है वो मोफा के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे मिल के हम एम्बेसीज़ में लगा रहे हैं। हमारे राब्ते भी रहेंगे, मोफा का भी राब्ता यहाँ पे इस्लामाबाद में, ताकि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान अपनी हुकूमत से डायरेक्ट लिंकेज में आ जाएं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर अपने पाकिस्तानी को, पाकिस्तान हो या वो बाहर रहते हो, उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। बिल्कुल, जबरदस्त। थैंक यू सो मच शिजा फातिमा हमारे साथ थे, विफाकी वज़ीर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन। और सबको बड़ा ये डर है कि जी AI रिप्लेस कर देगा, हमारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन आप जॉब उनकी खतरे में पड़ेगी जो AI से ना वाकिफ होंगे। तो आपको ये तमाम कोर्सेज इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल तो करना AI आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, वो शख्स आपकी जॉब रिप्लेस कर सकते हैं जिसको AI आता हो। बड़ी कमाल बात थी। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। कमिंग बैक टू द फ्लड सिचुएशन जो कि ओवरऑल पंजाब में थी और अब पंजाब से वो पानी चलता चलता सिंध में दाखिल हो चुका है। सबसे पहले हम मुल्तान चलते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ मौजूद है। सक्खर से हमें ज्वाइन किया है सलीम सहतू ने। तो मिर्ज़ा अहमद का पहले रुख कर लेते हैं। मिर्ज़ा अहमद बताइएगा इस वक्त किस मौजूद है और पानी की सतह यहाँ पर क्या देख रहे हैं और फ्लड रिलीफ कैंप्स में क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शेरशाह फ्लड बंद पर मौजूद हैं। यहाँ गुज़िश्ता रात से अब तक जो है तकरीबन आधा फीट जो है वो पानी में कमी आई है। इसी तरह अकबर फ्लड बंद की बात करें तो वहाँ जो महकमा आबपाशी की गेज है वो 413.60 से कम होकर 412.90 यानी कि 0.70% जो है वो वहाँ पानी में कमी आई है। मुसलसल जो है पानी में कमी आ रही है। अकबर फ्लड बंद है, शेरशाह फ्लड बंद है और दीगर जो बड़े फ्लड बंद हैं उनकी जो मुसलसल निगरानी के जरिए आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जो है मुजफ्फरगढ़ रोड पर, शेरशाह बंद पर और यहाँ नादराबाद मिल्ट फाटक रोड पर जो है सैकड़ों फैमिलीज़ जो है जो अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से आए थे वो यहाँ पर बैठे हैं खैमे लगाकर। उनको जो है सरकारी तौर पर खाना तो दिया जा रहा है लेकिन खैमों की सहूलत नहीं है, अद्वियात की सहूलत नहीं है, बच्चों के लिए दूध उनको मुहैया नहीं किया जा रहा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है ख़वातीन और बच्चों में फोड़े, फुंसियों, खारिश और दीगर अमराज जो हैं वो फूट पड़े हैं। उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ मुसलसल अपील की जा रही है कि ये इन लोगों को भी फौरी तौर पे जो है रिलीफ एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाए, क्योंकि सरकारी सतह पर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहाँ तो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है और अद्वियात भी मौजूद हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों के करीब खुश्की पर पनाह लिए हुए हैं, ऊँची जगहों पर पनाह लिए हुए हैं, इस वक्त भी सैकड़ों ख़ानदान यहाँ मौजूद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। आपको बताते चलूँ
وقت यहाँ मुल्तान से पानी की सतह जो है वो मुसलसल कम हो रही है। त्रीमू से बात करें तो 1,88,000 से ज़ायद क्यूसिक जो है पानी का वहाँ से अखराज हो रहा है। इस वक्त जो है बुलंद तरीन सतह है जो शदीद सैलाबी जद में है वो हेड पंजनद है, जहाँ 6,68,195 क्यूसिक जो है वो पानी गुजर रहा है। हेड पंजनद के जो नवाही इलाके हैं उनमें से बड़ी आबादियाँ जिनमें अजमतपुर है, नजरू वाली हट्टी है, खानगढ़ डोइमा है, सीतपुर है, लत्ती माड़ी है और इसके अलावा खैरपुर सादात के नवाही इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त सैकड़ों ख़ानदान जो हैं वहाँ पानी में महसूर होकर रह गए हैं। वहाँ ताहाल कोई एक्टिव जो है फ्लड रिलीफ एक्टिविटी नहीं शुरू की गई। लोगों की इवैक्यूएशन का वहाँ पे जो है मसला स्टिल है। लोग जो है वहाँ अपील कर रहे हैं कि उनको फौरी तौर पर जो है वहाँ से निकाला जाए, लेकिन इंतज़ामिया वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो है ये रेला यहाँ से गुजरने के बाद है पन्नत से गुजर रहा है और उसके अतराफ में जो है शदीद तबाही के मनाजिर हैं। सही, मिर्ज़ा अहमद अली साथ ही रहेगा। सलीम सेतु की तरफ चलते हैं, सखर बैराज पर मौजूद है। सलीम, आप हमें वहाँ की सूरत हाल बताइएगा क्योंकि ज़ाहिर है सिंध की तरफ रुख है, यहाँ पर क्या मनाजिर हैं? जी देखें, पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाबी रेला अब दरिया सिंध में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद गुड्डू, सक्खर और कोटली बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज पर आज पानी की आमद 5,02,000 क्यूसिक, सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसिक और कोटली बैराज पर पानी की आमद 2,58,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। पानी की सतह में इजाफे के बाद गुड्डू से लेकर कोटली बैराज तक जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पर हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जिनमें धान, कपास, गन्ने और सब्जियों की फसलें वो मुकम्मल तौर पर अब ज़ेरे आब आ चुकी, जबकि 1,650 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है और जो दरिया के मेन बहाव के करीब जो नशेबी इलाके थे कच्चे के, वो देहात भी अब ज़ेरे आब आ चुके थे। 16.5 लाख के करीब आबादी जो है कच्चे में रिहाइश पजीर है, जिनके ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुके हैं। अगर हम सिर्फ सक्खर डिवीज़न की बात करें तो सक्खर डिवीज़न में पानी की सतह में इजाफे के बाद 70,000 से ज़ायद कच्चे के रिहायशियों को जो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। कमिश्नर सक्खर के मुताबिक जिन लोगों को अपने माल मवेशियों और ज़रूरी साजो सामान के साथ पक्के की तरफ मुंतकिल किया गया, उनमें से अक्सर लोग जो है वो अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब के यहाँ उन्होंने रिहाइश अख्तियार की, जबकि जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए वहाँ पर इंतहाई कम तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद है। रिलीफ कैंप्स में इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल सहूलियात दी जा रही हैं, खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है, रहायश का बेहतरीन बंदोबस्त है, मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, लेकिन कच्चे के रिहायशी जो हैं वो फ़िलहाल रिलीफ कैंप्स की तरफ नहीं आ रहे। जो लोग बाहर आ रहे हैं वो अपने अजीज़ व अकारिब की तरफ जा रहे हैं। सक्खर बैराज की अपर स्ट्रीम और गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम में तकरीबन 280 देहात हैं जो अब पानी की सतह में जैसे इजाफा हो रहा है तो वो अब ज़ेरे आब आते जा रहे हैं। लोगों का इनखला जारी है, शुरू कर दिया गया है, लेकिन कच्चे के रिहायशियों का कहना है कि पानी की सतह जब 6.5 लाख से ऊपर जाएगी तब उन्हें ख़तरा होता है कि उनके घर डूबेंगे तो वो बाहर आते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान जो कच्चे का इलाका है वहाँ से 12,000 के करीब लोग बाहर निकले। जो सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम है वहाँ तकरीबन 55 लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू की अगर बात करें तो पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के गिर्द जो आबादियां उनका इनखला जारी है। सलीम सेतु हमें अपडेट कर रहे थे सक्खर बैराज से, अहमद मुल्तान से हमारे मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और ये सूरत हाल है जी, अब आप देखें और मुल्तान में हम देख रहे थे कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अब हम ज़ाहिर बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। दूसरी तरफ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। जलालपुर पीरवाला में हमने देखा कि शदीद तबाही वहाँ पर आई। कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वहाँ का पहले फ़िज़ाई दौरा किया, उसके बाद फिर ऑन फील्ड भी गई। अब वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। हुआ क्या कि जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलट गई रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। रेस्क्यू हुकाम ने अब ये बताया कि कश्ती में 20 अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम अफराद को बचा लिया गया, ताहम बाद में एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। और जुमेरात को भी जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन की एक कश्ती डूबी थी जिसमें एक खातून और 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हुए थे। और इससे पहले ये वाक़या हमने इस तरह का पेश आया था एक लियाकतपुर में, वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियाँ उल्टी थीं और वहाँ पर फिर नूरवाला देहात के करीब कश्ती उलटने से 2 खवातीन भी जाँ बहक हुई थीं। मुजफ्फरगढ़ से भी हमने एक दफ़ा ये बिल्कुल वहाँ पर जी अलीपुर में सैलाब मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई थी और रेस्क्यू अमले के मुताबिक हादसा कश्ती में पानी भर जाने की वजह से पेश आया, जबकि बताया जा रहा था कि एक शख्स जो है उसने फिर ज़ाहिर लटकने की और निकलने की कोशिश की तो उसकी वजह से जो बैलेंस है कश्ती का वो आउट हो गया और उसमें 10 से ज़ायद अफराद सवार थे।
तमाम अफराद अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। मौके पर मौजूद अफराद ने वहाँ पर बर वक्त कार्रवाई की। तो ये पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं ना कि हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी पर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान रेस्क्यू 1112 फ़ारूक अहमद साहब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा जो सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये कश्ती उलटने के जो वाक़यात हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, बुनियादी इसकी वजूहात क्या हैं? मैडम थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। देखिए पहले तो आप ये समझें कि इस वक्त पंजाब भर में 1500 से ज़ायद रेस्क्यू बोट हैं जो फ्लड एरिया में ऑपरेशनल हैं और रेस्क्यू 1122 3,62,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुका है। और इसके अलावा पंजाब के जो सारे डिपार्टमेंट है ये 2.2 मिलियन लोगों को और 1.6 मिलियन जानवरों को वहां से इवैक्यूएट कर चुके हैं। अब आप ये समझें कि अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आप सिर्फ कराची में देखें जब गाड़ियां चलती हैं, जब इतनी ज्यादा गाड़ियां चलती हैं तो क्या उनके एक्सीडेंट्स होते हैं? एक क्वेश्चन मार्क है। आप पूरे पंजाब में देखें जब गाड़ियां चलती हैं तो उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बोट जब चलती हैं तो उनके एक्सीडेंट होना जरूरी है। हमें इस बात को जानना जरूरी है कि जब आपके 40,000 ट्रिप होंगे रेस्क्यू बोट के, तो इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि किसी ना किसी जगह पे वो एक ट्रैवलिंग करने वाली चीज है, तो उनका भी कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। लेकिन इस बात को जरूरत से ज्यादा अफराद सवार करवाए जा रहे हैं, जाहिर है इस वजह से हादसा की कोई वजह होती है जिसकी वजह से हादसा होते हैं। यस, मैं अर्ज करता हूँ। एक तो पहले आप ये समझें कि जिस जगह पे काम होता है वहां पे कोई ना कोई मिसहैप भी होते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो ज्यादातर बोट्स रिपोर्ट हुई हैं वो कुछ प्राइवेट बोट्स थी जिनके मुतालिक रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन रेस्क्यू की भी इक्का दुक्का बोट के साथ ये वाकया पेश आया और इसकी वजह क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है कि जहाँ पे रेस्क्यू बोट्स चल रही हैं ये कोई प्रॉपर रेस्क्यू बोट्स करने वाली ट्रेन नहीं है, ये वो जगह नहीं है। मतलब दरिया के अंदर जब बोट चलती है उसका एक प्रॉपर ट्रैक होता है, सब लोगों को पता होता है कि इस जगह पे बोट चलनी है। जब सैलाबी इलाके में बोट चलनी है वहां पे दरख्त भी होगा, उसके नीचे कोई और रुकावट भी हो सकती है, कोई खंबा भी हो सकता है, कोई ऊंच नीच भी हो सकती है। इवन जो जहन में बात होती है वो सबसे अहम बात होती है कि हमने लोगों को रेस्क्यू करना है। किसी जगह पे पानी 3 फुट हो सकता है, किसी पे 4 फुट हो सकता है, किसी पे 5 फुट हो सकता है। तो ये हमवार ट्रेन नहीं है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसके बाद एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं तो लोगों में कयास होता है, अफरा तफरी होती है। हर बंदा चाहता है कि मैं बोट के अंदर बैठ जाऊं। अब जब आप किसी जगह पे रिक्रिएशनल एरिया पे जाते हैं वहां पे हम पेमेंट करते हैं और डिसिप्लिन के साथ लोग कम होते हैं, बड़े सुकून से बोट में बैठते हैं और सब लोग उन हदायत को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपकी फुटेज भी मैं देख रहा हूँ, आप देखिए जब लोग ज्यादा खड़े होंगे, हालांकि उन्हें पता है कि हम अगली बोट में बैठ जाएंगे, लेकिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम इसी बोट में बैठे। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि एक बोट है उसकी एक लिमिटेशन है, लाइक उसमें 14 लोग बैठ सकते हैं, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30। अब अगर लोग ये चाहें कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली एक ही बोट में जाए, उसको ओवरलोड कर दें और जब वो ओवरलोड हो जाती है, गुंजाइश से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं, रेस्क्यू का जो अमला है जब लोग उनकी बात नहीं सुनते फिर इस तरह के वाकयात जन्म लेते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये जो जितने लोग बाहर आ रहे हैं ना, इनमें खवातीन की कसरत के साथ तादाद है जो शायद रेस्क्यू बोट में शायद पहली दफा बैठ रही हैं, वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा में है, परेशानी में है। तो जो ही बोट थोड़ी सी तेज टर्न लेती है या मूव करती है तो वो एकदम परेशान हो जाती हैं, टेंशन में आ जाती हैं। एक दो बोट में तो गिरते गिरते ऐसा वाकया हुआ, मुझे फील्ड ऑफिसर ने बकायदा बताया कि खवातीन इतनी डरी हुई थी कि उनकी मूवमेंट की वजह से बोट मिसबैलेंस हो रही थी। दीज आर द रीजन लोग परेशान हो जाते हैं, बैठते हैं, लोग इस वक्त परेशान हैं। जी, दिस इज द इशू। मेन इशू ये है कि बोट की बैलेंसिंग, लोग डर के खतरे में आके परेशान होके एकदम ही जान में आ जाते हैं। तो दीज आर द सिचुएशन। आपके चैनल से एक बात मुझे करनी है, आपका प्लेटफॉर्म दुनिया देखती है, गुजारिश ये करनी है कि वो जगह खासतौर पे अलीपुर, जतोई, बसीन, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि लोग एडवांस इवैक्यूएशन करें। प्लीज हमारे साथ लोग ताउन करें और वहां से पहले इवैक्यूएशन हो जाए। इस वक्त जलालपुर में 139 बोट मुल्तान के अंदर मौजूद है जो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। अपनी बारी का इंतजार करें। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर खुद
जलालपुर पीरवाला में, मुल्तान में मौजूद हैं जो इस राइट, वक्त तो लोग challenging एडवांस इवैक्यूएशन शुरू करें. बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप बाखबर सवेरा के लिए आपने वक्त निकाला. एंड देखिए, टू सम एक्सटेंट ही वाज राइट एंड इट वाज फेयर इनफ व्हेन ही सेड कि बोट का एक ट्रैक होता है. अब यहाँ सैलाबी सूरत हाल में यू नेवर नो कि नीचे दरख्त है, ऊपर दरख्त है. एंड थर्डली सेकेंडली देहाती लोग हैं ना ज़्यादातर जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वो लोग chaos खौफ कर के देते आलम हैं. में चाह रहे हैं कि हम पहले से पहले सवार हो जाएं, तो वो पेशेंस, वो इंतजार नहीं हो पा रहा, जो कि समझ आती है बोट का सबको अपनी जान की परवाह इंटायर है. आइडिया इज न्यू फॉर सम पीपल. वहाँ पर जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. आप Stay हमारे with साथ us. रहिएगा. वेलकम Welcome बैक back. वंस अगेन. और एशिया कप में क्या हो रहा है, ज़रा सा इस पे नज़र डाल लेते हैं. मुझे बड़ी हमदर्दियां हैं मेरी यूएई की टीम के साथ. ज़ाहिर है वो भी खेलने आए, लेकिन उनका हो गया मुकाबला भारत से. अब इस मैच में पता नहीं क्या क्या हो रहा था. नए नए रिकॉर्ड इस मैच में बन गए, क्योंकि दिफाई चैंपियन भारत है और यूएई सामने था. अच्छा, 9 विकेटों से शिकस्त, आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो हमने बहुत सुना है, ऐसा खेल में होता ही है, कोई जीतता है कोई हारता है. लेकिन पूरा मैच जो है वो सिर्फ 17 ओवर्स में कंप्लीट हो गया और यूएई के बैटर्स जो हैं वो भारतीय बॉलर्स के सामने नहीं टिक सके. पूरी टीम ने कितने रन बनाए? सिर्फ 57 होते हैं 57. पूरी टीम उस पर ढेर हो गई और एक मौके पर 47 रन तक सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे. मगर हम ये कहें कि आगाज़ फिर भी अच्छा था, लेकिन 90 ओवर में कुलदीप ने 3 विकेटें हासिल करके इस मैच का पासा पलट तो दिया. आपको मतलब यूएई से हमदर्दी हो रही है, तो जो हांगकांग के साथ हुआ उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं आपको? उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, उन्होंने अपनी गलतियां भी की हैं उन्होंने. जनाब, भारतीय बैटर्स ने 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 4.3 ओवर्स में अपना हदफ हासिल कर लिया. अभिषेक शर्मा ने 30 और शुभमन गिल ने 20 रन बनाए. इवेंट में आज की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और हांगकांग का मुकाबला होगा. क्या लगता है आपको, बांग्लादेश और हांगकांग? बांग्लादेश और हांगकांग, जाहिर है बांग्लादेश जीत जाएगा. लेकिन ये देखिए, भारत ने 5 ओवर्स में जी बैटिंग करके 58 रन बना के मैच जो है ख़त्म कर दिया. अब ये मुकाबले तो हो रहे हैं, लेकिन अब जो कहते हैं ना असल मुकाबला है जिस पर सबकी नज़रें हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला. और जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है तो फिर हम ये देखते हैं कि दोनों मुल्कों का जो एक रिवायती हरीफ माने जाते हैं, बड़ी हाइप होती है, बड़ा टाकरा होता है. और इस दफ़ा ज़रा सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद मरसूस मार्का हक में कामयाबी हासिल करने के बाद, अब पहले तो भारत हमारे साथ खेलता ही नहीं था, खेल भाग रहा था खेल से. अब किसी भी तरीके से वो राजी हो गए. तो हुआ क्या, मीट एंड ग्रीट सेशन था, सारे कैप्टन्स बैठे थे, वहाँ कुछ ऐसा हुआ, वीडियो वायरल हुई और सारा इंडियन मीडिया पीछे पड़ गया है सूर्य कुमार भाई यादव. वो वीडियो क्या वायरल हुई, ये आप मंजर देख लें. सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ क्या मिला लिया और मोहसिन नकवी साहब से क्या हाथ मिला लिया. इंडियन एक्सट्रीमिस्ट मीडिया तो फट पड़ा. एंड देन अगेन आपको तो पता है कि कितने ये शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर इनके तमाम तरह एजेंडा प्रोपोगेट कर रहा होता है. और वही आपका गोदी मीडिया दोबारा से एक्टिव हुआ. बेचारे सूर्य कुमार यादव को उन्होंने एक तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, गद्दारी करार दे दिया. बेचारे को क्या कसूर था, जो हीरो होना चाहिए उसे विलन ही बना दिया. अभी मैच भी नहीं हुआ है पाकिस्तान में. छोटी छोटी हरकतें जो है ना, ये भारत करने से वैसे बाज नहीं आता. और ये कौन करते हैं हमें पता है, ये वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट भक्स, आरएसएस फॉलोअर्स जो कि मुस्लिम दुश्मनी प्रोपेगेंडा पर वाहन चढ़ाते हैं और नैरेटिव बिल्ड करते हैं. अच्छा, हम खैर अपनों को भी नहीं बख्शते ना. आपकी क्रिकेट टीम का कैप्टन है, उसने आपके लिए इतने मैचेस खेले, इतना अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, अभी एशिया कप में आपकी टीम को लीड कर रहा है और आपने उसी को गद्दार कह दिया. और ये बेसिक एथिक्स हैं कि आप कहीं भी किसी से मिलते हैं तो सलाम दुआ हाथ मिलाते हैं, ग्रीट करते हैं. उन्होंने वही किया है, इसमें कोई हर्ज नहीं. मैं कहती हूँ अगर कोई हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी इंडियन से हाथ मिलाते हैं, हम कहते हैं देखिए जी हमारा कितना बड़ा दिल है और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं. लेकिन भारतीय मीडिया की क्या कहना, प्रोटोकॉल्स भी होते हैं ना कुछ इवेंट के. अब एक मीट एंड ग्रीट थी, उन्होंने मिला लिया हाथ. बात फिर वही है कि भारत के ऊपर अजाब उसका अपना ही मीडिया. ये गोदी मीडिया जो है ना, ये एक अजाब है भारतीय मीडिया के ऊपर. अपना ही अजाब जो है ना उनका अपना मीडिया. चले जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं. एशिया कप के जो मैचेस हैं होते रहेंगे. कल पाकिस्तान का ओमान के साथ है, सो मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 बहुत ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.